Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Professor Vinay More's DG class. In previous videos, we learned the theory on duct design, and today I am going to cover numericals on this duct design. I hope you have revised previous lesson. Okay, so let's start. Okay, I'm sharing some questions, some important types of questions on a duct design. You can see on a screen there is a first numericals is on Bernoulli's equation for ducts, and second type is equivalent diameter of circular duct for a rectangular duct, and third one is on friction charts for the circular ducts. So before starting numericals, I will revise some important formulas on this chapter. Okay, model number 6, duct design. First formula is a total pressure. Total pressure is the addition of static pressure and dynamic pressure. And static pressure is nothing but a friction loss. And second one is the dynamic pressure. It is nothing but velocity pressure. So how to determine PT means total pressure? Just simply adding PS or PF with PV. PS or PF is nothing but a friction loss, that is a static pressure, and PV means dynamic loss, dynamic or velocity pressure loss. So how to determine PS? By using a formula FL rho V square upon 2m. Here I have written V as a V bar. V bar indicates velocity and simply V indicates volume. So don't get confused in V bar and V. So static pressure कहाँ से आएगा? तो FL rho V bar square divided by 2m. F is a friction factor, L is a length which will be in meter, V bar is a velocity, it should be in meter per second, rho is a density of any fluid, that is its a unit is a kg per meter cube, and m is a nothing but a mean hydraulic depth, इसका यूनिट रहेगा मीटर. What do you mean by mean hydraulic depth? तो सिंपली आपको जो भी करना है, you have to take a ratio. सबसे पहले आपको चेक करना है उसका शेप क्या है, देन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला डिवाइड बाय पेरीमीटर. फॉर द एग्जांपल, if we consider a rectangular cross sectional area, if we consider rectangular cross sectional area, then your formula will be AB means cross sectional area upon perimeter twice A plus B. If you're talking about a circular, then D by 4. If you're talking about a square, then it will be A by 4. So आपको ये formulas याद रखना है कि M का formula कौन से शेप के लिए क्या है. अगर याद नहीं रहता तो सिंपली क्रॉस सेक्शनल एरिया को याद रखो, पेरीमीटर को याद रखो, उसका रेशियो निकालो. नेक्स्ट, दैट इज अ डायनामिक और वेलोसिटी प्रेशर. तो वो कहाँ से आएगा? तो रो वी स्क्वायर बाय 2. अगेन रो इज अ डेंसिटी, वी इज अ वेलोसिटी डिवाइड बाय 2. आई होप ये फॉर्मूला समझ में आया होगा. इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसके बाद में. ओके, नेक्स्ट है बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन हम एफएम में भी आई थिंक कवर किया है. दैट इज अ kinetic energy plus potential energy plus pressure energy, all type of energy is equal to constant. So static pressure head, I'm talking about a head, not energy. और head किस में होता है? That is in meter. So अगर energy बोला तो जूल में, प्रेशर बोला तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. सो ये याद रखना. सो स्टैटिक प्रेशर, सो आपको कहाँ से मिलेगा? तो प्रेशर से मिलेगा. काइनेटिक प्रेशर हेड दैट इज रो वी स्क्वायर बाय 2, एंड पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली हम जीरो ही लेते हैं, बट इनकेस अगर दिया होगा तो आपको लेना पड़ेगा, दैट इज जेड. नेक्स्ट फॉर्मूला इज अ डिस्चार्ज. डिस्चार्ज Q is equal to area into velocity. Area into velocity. Therefore, velocity is nothing but क्या रहेगा? Discharge.
डिस्चार्ज मीन्स क्यू का यूनिट क्या रहेगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, नॉट अ सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसका यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आता है जहाँ पे आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। डक्ट डिजाइन है, सपोज आपका जो भी डक्ट है इनिशियली इट वाज इन अ स्क्वायर टाइप और रेक्टेंगुलर टाइप, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ पाइप शेप। सो हमें कन्वर्जन करना है रेक्टेंगुलर का सर्कुलर शेप में, तो ऐसे केस में आपको इक्विवेलेंट डायमीटर फाइंड आउट करना है। इट्स अ डिजाइन कॉन्सेप्ट। सो सपोज वहाँ पे दो कंडीशंस होती है। सपोज मुझे जो फ्लो रेट है, क्वांटिटी, वो क्या रखना है, पहले भी सेम था और सेकंड डिजाइन में भी सेम रहना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या रहेगा। सपोज सेकंड कंडीशन है, अगर मुझे वेलोसिटी पहले केस का और सेकंड केस का भी सेम रखना है, जो भी फ्लूइड उसमें से पास हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस, इफ द बोथ क्वांटिटी इज अ सेम, अगर मेरा क्वांटिटी पहले डिजाइन और सेकंड डिजाइन में भी सेम है, तो मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना है, d is equal to 1.265 a cube into b cube upon a plus b। अभी a क्या है, b क्या है, ऑफ कोर्स a उसका लेंथ होगा, b उसका विड्थ होगा। सो पहले शिप का डिजाइन को यूज करके, पैरामीटर्स को यूज करके आपको d फाइंड आउट करना है। सपोज सेकंड आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो ऐसे केस में सॉरी, सपोज वेलोसिटी इज द सेम और आपको इक्विवेलेंट डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो सिंपल ऐसा फॉर्मूला है उसको यूज करना है, d is equal to 2ab upon a plus b। नेक्स्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने पहले से भी सुना है, ये सारा कॉन्सेप्ट एफएम में हुआ है, एम डॉट इज इक्वल टू रो क्यू या तो फिर रो ए वी बार। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दो शेप मैंने दिए हैं, एक है एनुलर शेप है, पेंटागन टाइप है, जहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 1 इज अ डिफरेंट फ्रॉम 2 2, और एक सेकंड केस है जहाँ पे मेन पाइप के साथ दो ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, 2 एंड 3। सो ऐसे केस में क्या होगा, डिस्चार्ज एट इनलेट एंड आउटलेट विल बी द सेम, सो Q1 इज इक्वल टू Q2। और इस केस में क्या रहेगा, सेकंड केस में Q1 जो मेन पाइप का है वो डिस्चार्ज विल बी द एडिशन ऑफ सेकेंड ब्रांच प्लस थर्ड ब्रांच क्वांटिटी, सो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। ओके, सो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं, पीडीएफ पेज नंबर 659। मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक पीडीएफ शेयर किया है आरएससी का, कुर्मी का, तो वो आपको डाउनलोड करके लेना है और उस पर डायरेक्टली जाना है आपको, पीडीएफ का पेज नंबर 659। ओके, मैं वो स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करता हूँ, क्या क्या गिवन डेटा है वो चेक करते हैं। 659। ओके, 659 एग्जाम्पल नंबर 20.1। ओके, क्या दिया है, द मेन एयर सप्लाई डक्ट ऑफ एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। मेन एयर सप्लाई बोला है ऑफ ए डक्ट, डक्ट से पता चला मॉडल नंबर 6, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन 800 mm बाय 600 mm इन क्रॉस सेक्शन। सो मेन डक्ट का उन्होंने क्या दिया, एरिया दिया हुआ है 800 mm एंड 600 mm। सो आपके सामने यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, शेप दिया हुआ है, सो वन दिया है, सो A1 800 mm and B1 600 mm is given। नेक्स्ट इट कैरीज द 300 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ स्टैंडर्ड एयर, वो कैरी कर रहा है स्टैंडर्ड एयर को, जिसका मीटर क्यूब पर मिनट मीन्स मीटर क्यूब पर सेकंड मुझे मिल सकता है। सो क्या दिया है, वॉल्यूम फ्लो रेट या तो फिर क्यू दिया हुआ है। सो Q1 300 mm मीटर क्यूब पर मिनट इज गिवन। इट ब्रांचेस इनटू टू डक्ट्स ऑफ अ क्रॉस सेक्शन 600 mm by 500 mm, मतलब एक का उन्होंने दिया हुआ एरिया 600 बाय 500 mm और सेकंड का एरिया दिया हुआ है 600 mm बाय 400 mm। सो एरिया A2 is also given। If the mean velocity in the larger branch is a 480 मीटर पर मिनट, आपको लार्जर ब्रांच कहाँ से पता चलेगा, तो सबसे पहले यू हैव टू चेक एरिया, A2 is a greater than A3 और A3 is a greater than A2, तो उसका उन्होंने दिया हुआ है वेलोसिटी 480 मीटर पर मिनट। सो एक ब्रांच का
लार्जर ब्रांच का उन्होंने वेलोसिटी इज गिवन, फाइंड मीन वेलोसिटी इन द मेन डक्ट, आपको v1 फाइंड आउट करना है। स्मॉलर ब्रांच का आपको सेकंड वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तीसरा है मीन वेलोसिटी प्रेशर इन ईच डक्ट, तो आपको वेलोसिटी प्रेशर हेड भी आपको फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले एक रफली सॉल्व करके आपको मैंने शो करता हूँ। टाइप नंबर 1 बर्नौलीज इक्वेशन का न्यूमेरिकल हम चेक कर रहे हैं, जैसे कि मैं हमने फर्स्ट इनिशियल डिस्कस किया था बर्नौलीज इक्वेशन, इट इज द फर्स्ट टाइप। सो उसको न्यूमेरिकल का सॉल्व कर रहे हैं। सो a1, सो स्मॉल a1 b1, सो ये एरियाज आपके पास ऑलरेडी गिवन है, a1 b1 a2 b2 a3 b3, सो यू विल गेट कैपिटल a1 कैपिटल a2 कैपिटल a3, बट कैपिटल a1 इज अ मेन ब्रांच, इट इज अ मेन पाइप, एंड a2 और a3 दीज आर दी ब्रांचेस। सो सबसे पहले चेक करना है कि इसमें से लार्जर एरिया किसका है, दैट इज a2, सो इट्स अ लार्जर ब्रांच, a2 is a cross sectional 2 is a larger and a3 is a smaller one. So मुझे लार्जर का वेलोसिटी दिया है, मीन्स मुझे क्या दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है, क्योंकि a2 इज ग्रेटर देन a3, सो लार्जर एरिया का मुझे वेलोसिटी मीन्स v2 दिया है, ना कि v3 दिया हुआ है। 480 मीटर पर मिनट, मैंने उसका कन्वर्जन करके लिया मीटर पर सेकेंड में। सिमिलरली q1 दिया था मीटर क्यूब पर मिनट में, उसका कन्वर्जन मैंने करके लिया मीटर क्यूब पर सेकेंड में। सो आंसर वाज 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सबसे पहले देखते हैं, मुझे v1 फाइंड आउट करना है, तो आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। वी बार इज नथिंग बट क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, या तो फिर Q इज इक्वल टू ए वी बार, ये फॉर्मूला पता है। सो वी बार कहाँ से आएगा, तो सिंपली Q डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मुझे चेक करना है कि V1 अगर फाइंड आउट करना है तो Q1 मुझे गिवन है क्या, यस Q1 इज गिवन, दैट इज 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफकोर्स मैं किसका लूंगा, वो A1 लूंगा। सो A1 भी पता है, सो मुझे मिलेगा V1 बार। सो V1 बार इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाय A1। सेकेंड केस मैंने आपको बोला याद रखने के लिए, फॉर दिस केस 1 1, सो इनलेट पाइप का डिस्चार्ज इज इक्वल टू आउटलेट ऑफ बोथ ब्रांचेस, सो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 नाउ। एंड थर्ड वन इज अ मीन प्रेशर वेलोसिटी बोला है, सो प्रेशर फाइंड करना है वेलोसिटी का, सो वहां पे एक फॉर्मूला है, दैट इज v इज इक्वल टू v डिवाइड बाय 4.04 का होल द स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो आपको मैं कुछ फॉर्मूला लिस्ट शो करता हूँ। ओके, स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे एक पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर किया है। स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला था टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी एफ प्लस पीवी, बट यहाँ पे एफ एल रो वी बार स्क्वायर डिवाइड बाय 2m से अगर मुझे प्रेशर मिलता है, स्टैटिक प्रेशर फ्रिक्शनल प्रेशर मिलता है, वो रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अगर मुझे इसका कन्वर्जन एम ऑफ वाटर में करना है तो मेरा फॉर्मूला लिटिल बिट चेंज होगा, दैट इज एफ एल डिवाइड बाय एम इंटू वी डिवाइड बाय 4.04। सो ये आपको कन्वर्जन करके लेना है, सपोज इफ यू वांट टू कन्वर्ट प्रेशर इनटू ऑफ वाटर। सो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि PV1 PV2 PV3 आपको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ऑफ वाटर। सो मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सेकंड उन्होंने बोला था V3 फाइंड करना है, बट V3 ऑफ कोर्स V3 क्या रहेगा, दैट इज अ Q3 डिवाइड बाय A3, डिस्चार्ज डिवाइड बाय एरिया, बट आई डोंट नो Q3। सो Q3 कहाँ से पता चलेगा, तो वापस से मुझे इस रिलेशन की तरफ आना पड़ेगा। Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, सो Q3 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, बट मुझे Q1 ऑलरेडी गिवन था 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बट Q2 कहाँ से आएगा, तो Q2 आएगा A2 इंटू V2 बार से। सो अगर ये प्रोडक्ट को करता हूँ तो मुझे Q2 मिलेगा, Q1 माइनस Q2 करता हूँ तो मुझे Q3 पता चलेगा, और Q3 और A3 का डेटा को यूज करता हूँ तो मुझे V3 बार पता चलेगा। नेक्स्ट मुझे यूज करना है, सॉरी मुझे फाइंड आउट करना है प्रेशर वेलोसिटी, सो इन टर्म्स ऑफ ऑफ वाटर, सो v डिवाइड बाय 4.04। तो यहाँ पे जो भी आपका वेलोसिटी आया है, सो PV1 के लिए V1 बार, PV2 के लिए V2 बार एंड PV3 के लिए V3 बार को आपको मीटर पर सेकेंड में पुट करना है और आंसर्स फाइंड आउट करना है।
और उसका यूनिट रहेगा आंसर का, दैट इज mm ऑफ वाटर. सो पीडीएफ की तरफ आता है. ओके. सो सब देखते हैं न्यूमेरिकल में. सबसे पहले उन्होंने A1 फाइंड आउट किया, A2 फाइंड आउट किया, A3 फाइंड आउट किया. फिर B1 Q1 और A1 को यूज करके V1 फाइंड आउट किया. नेक्स्ट उन्होंने Q2 भी फाइंड आउट किया A2 V2 करके. फिर उन्होंने Q3 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 किया. फिर Q3 को फाइंड आउट किया. A3 ऑलरेडी गिवन था, सो उन्होंने V3 फाइंड आउट किया. और फिर एज यूजुअल उन्होंने मीन प्रेशर, वेलोसिटीज, प्रेशर को उन्होंने फाइंड आउट किया. सब इस न्यूमेरिकल को एक बार देख लो. ये था फर्स्ट टाइप. नाउ कम टू दिस सेकेंड टाइप. पीडीएफ पेज नंबर 675. अगर आर एस कुर्मी में जाते हो तो उसका पेज नंबर है 663. ओके. सो पेज नंबर 675 का न्यूमेरिकल क्या है वो चेक करते हैं. ओके. सो ये क्वेश्चन है टाइप नंबर 2 पे, और टाइप नंबर 2 675 आर एस कुर्मी. यहाँ पे क्या दिया है? इट इज अ रेक्टेंगुलर डक्ट, 0.15 मीटर लेंथ दिया हुआ है, 0.15 मीटर बाय 0.12 मीटर. सो एरिया इज गिवन 0.15 into 0.12. Cross sectional area is given. Is a 20-meter long, so length is also given. It carries a standard air at the rate of 0.3 meter cube per second. So air का उन्होंने क्या दिया हुआ है? Discharge rate, that is Q. Volume is given. Sorry, volume is not given. That is the flow rate is given. Calculate the total pressure. PT find out करना है. At the inlet to the duct in order to maintain its this flow and the air power. Assume that for the duct friction factor F is equal to 0.005. 0.005. So क्या क्या given है? A is given, B is given, length is given, Q is given and F is given. So आपको क्या करना है? सबसे पहले उसका टाइप पता चला है और आपको फाइंड आउट क्या करना है? उसका टोटल प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है और एयर पावर फाइंड आउट करना है. So area was given. Okay. So area A by B, that is 0.018 मीटर स्क्वायर गिवन था. मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करना था. सो डिस्चार्ज वाज आल्सो गिवन, दैट इज 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो एरिया पता था, डिस्चार्ज पता था. आई फाइंड आउट वी बार. नेक्स्ट लेंथ इज आल्सो गिवन. डेंसिटी अगर दिया नहीं तो याद रखना, दैट इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है पीटी, और पीटी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज पीटी इज इक्वल टू स्टैटिक प्रेशर हेड, दैट इज अ फ्रिक्शनल लॉस प्लस डायनामिक और वेलोसिटी प्रेशर हेड. So FL rho V B square, FL rho V bar square divided by 2m plus rho V square by 2. So F is given, that is 0.005. Length is also given, that is a 20 meter. Density, it was not a given, so we will take it as a 1.2. V bar find out करना था तो already find out कर चुके हैं, Q divided by A. And M that is a mean depth, तो वो कहाँ से आएगा? तो area divided by perimeter. सो वो करके आपको मिलेगा 0.033 मीटर. नेक्स्ट प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2. सो रो वी पता है, वी भी पता है. सो आराम से आपको क्या पता चलेगा? पीटी, दैट इज 671.85 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो देखते हैं
कुर्मी में इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ए फाइंड आउट किया, क्यू तो ऑलरेडी गिवन था। नेक्स्ट उन्होंने वी फाइंड आउट किया, फिर वेलोसिटी प्रेशर के लिए रो वी स्क्वायर बाय 2 वो फाइंड आउट किया, मतलब अलग अलग से फाइंड आउट करके लिया। नेक्स्ट मीन डेप्थ आपको फाइंड आउट करना था, तो मुझे लग रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आई थिंक ये दिया था ए बाय बी करके, और पेरीमीटर ट्वाइस ए प्लस बी, ऐसे करके उन्होंने मीन डेप्थ अलग से फाइंड आउट किया। और यहाँ पे एक नया फॉर्मूला यूज किया उन्होंने, एफ एल बाय एम इंटू पी वी, बट ये यूज करने का जरूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी वन वेरी नाइस फॉर्मूला, सो वो अगर बाहर होगा तो ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, दोनों का आंसर वैसे भी सेम आने वाला है। सो डोंट क्रिएट ए कंफ्यूजन, सो डोंट गेट कंफ्यूज। सो वो हमारा जो एज यूजुअल फॉर्मूला है, पी एफ इज इक्वल टू एफ एल रो वी बार स्क्वायर बाय 2m यूज करते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट, सो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग से पी एफ फाइंड आउट करके लिया, पी वी फाइंड आउट करके लिया, देन एडिशन किया उसका। नेक्स्ट एक और चीज उन्होंने पूछा था कि एयर पावर आपको फाइंड आउट करना है, तो एयर पावर का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, यहाँ पे डिस्चार्ज क्यू इंटू टोटल प्रेशर। सो डिस्चार्ज ऑलरेडी गिवन था 0.3, टोटल प्रेशर हमने जस्ट निकाला, सो यू विल गेट 201.6 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन मीटर पर सेकेंड आपको पता है दैट इज 1 जूल, और जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वैट, सो 201.6 वैट। So it was question number 2. Next, PDF page number 677 and RS Kurmi. There is a one type number 3 देखते हैं, और type number 2 आपके notes में already solve है। Type number 3 is the friction charts for the circular ducts. So वहाँ पे एक numerical solve करते हैं इसमें से। Page number 677. PDF का page number है 677. This is a friction chart. Okay. एक काम करते, फ्रिक्शन चार्ट को पहले समझ लेते क्या है एग्जैक्टली। ओके, सो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में वर्टिकली आपको यहाँ पे दिया है एयर वॉल्यूम इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट इज गिवन। दूसरा उन्होंने बोला है नीचे हॉरिजेंटल में है दैट इज अ फ्रिक्शन लॉस इन एमएम ऑफ वाटर। सो एक्स एक्सिस पे फ्रिक्शन लॉस इन एमएम ऑफ वाटर पर मिनट, और यहाँ पे है वॉल्यूम फ्लो रेट इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। और डायगोनल डाउनवर्ड जो लाइंस है वो इंडिकेट करता है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे डायगोनल अपवर्ड जो लाइंस है वो इंडिकेट करता है एमएम डायमीटर पाइप। सो यहाँ पे चार चीजें उन्होंने दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे एयर वॉल्यूम इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, एक्स एक्सिस पे फ्रिक्शन लॉस इन एमएम ऑफ वाटर पर मीटर, नेक्स्ट डायगोनली अपवर्ड में दिया हुआ है डायमीटर ऑफ पाइप इन एमएम, एंड डायगोनल डाउनवर्ड में दिया है उन्होंने वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। सो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इट एग्जाम्पल 20.9, ए डक्ट ऑफ 650 mm डायमीटर। डक्ट से पता चला मॉडल नंबर 6 जिसका डायमीटर है 650 mm, सो कैपिटल डी इज गिवन। नेक्स्ट लेंथ इज अ 15 मीटर, सो लेंथ इज अ 15 मीटर दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्यू दैट इज 144 मीटर क्यूब पर mm, सो डिस्चार्ज फ्लो रेट इज गिवन, एक्चुअली पर mm नहीं है, दैट इज अ मिनट। फाइंड द प्रेशर लॉस इन द डक्ट बाय यूजिंग अ फ्रिक्शन चार्ट। आपको प्रेशर लॉस फाइंड आउट करना है। सो नॉर्मली पहले जो प्रेशर लॉस हमने देखा था एफ एल रो वी स्क्वायर बाय 2m, वो फॉर्मूला था। अगर फ्रिक्शन चार्ट से मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको करना है, तो यहाँ पे मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, शॉर्टकट में दिया हुआ है मैंने। सो डी इज गिवन, एल इज गिवन, क्यू मीटर क्यूब पर मिनट, बट आपने देखा है कि यहाँ पे क्यू जो है मीटर क्यूब पर सेकेंड में चाहिए, सो मैंने उसका कन्वर्जन करके लिया, दैट इज 2.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। टेम्परेचर दिया बट इट्स एडिशनल डेटा, और आपको फाइंड आउट करना है फ्रिक्शनल
फैक्टर। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मेरा 2.4 कहाँ पे है, तो वो लेफ्ट साइड में वर्टिकल लाइन पे है, वॉल्यूम की लाइन पे, तो वो आपको मार्क करके लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन में। बट अप टू डायमीटर लाइन, डायमीटर कितना दिया है 650 और हमें पता है डायमीटर जो लाइन है दैट इज अ डायगोनल अपवर्ड लाइंस। सो तब तक आपको क्या करना है, मार्क करके लेना है। नेक्स्ट देन यू विल गेट पॉइंट नंबर पी। नेक्स्ट वहां से एग्जैक्टली वर्टिकली आपको डाउनवर्ड में आना है, वहां पे आपको मिलेगा 0.1 mm ऑफ वाटर पर मीटर बोला है। बट ऑलरेडी हमारे पास लेंथ गिवन है दैट इज अ 50 मीटर। सो वहां पे 0.1 इंटू 15 करोगे तो आपको मिलेगा 1.5 mm ऑफ वाटर। ओके, वापस से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने वॉल्यूम फ्लो रेट चेक किया 2.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, हमने उसको मार्किंग करके लिया, हॉरिजेंटल में गए बट अप टू डायमीटर लाइन दैट वाज अ 650 mm। सो यू विल गेट पॉइंट नंबर पी। सो वहां से वर्टिकली डाउनवर्ड में आओगे तो आपको मिलेगा फ्रिक्शनल लॉस 0.1 mm ऑफ वाटर पर मीटर था। बट ऑलरेडी अपने पास लेंथ इज अ 15 मीटर गिवन था, सो 15 से उसे मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट 1.5 mm ऑफ वाटर। नेक्स्ट अभी आते हैं जो नोट्स में जो न्यूमेरिकल आपका गिवन है, पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 2 जो नोट्स में आपके ऑलरेडी सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दैट इज अ टाइप नंबर 2 न्यूमेरिकल। अ रेक्टेंगुलर डक्ट सेक्शन 500 mm बाय 350 mm साइज। सो ये क्या दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल का एरिया दिया हुआ है। इट कैरीज 75 मीटर क्यूब पर मिनट, वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है पर मिनट, उसको कन्वर्जन करके लेना पड़ेगा। ऑफ एयर हैविंग अ डेंसिटी, एयर का डेंसिटी मतलब रो ए इज गिवन दैट इज 1.15 kg पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर डक्ट। यही से पता चला इट्स अ टाइप नंबर 2, जहाँ पे आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट डायमीटर। इफ यहाँ पे दोनों कंडीशन दिया हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ एयर इज कैरिड इज द सेम, अगर क्वांटिटी मुझे सेम रखना है, और सेकंड टाइप में दिया है इफ वेलोसिटी ऑफ एयर इज सेम, मतलब दोनों बोथ कंडीशंस के लिए आपको डायमीटर अलग अलग से फाइंड आउट करना है। इफ एफ इज इक्वल टू 0.01 फॉर शीट मेटल, फाइंड द प्रेशर लॉस per 100 मीटर लेंथ ऑफ द डक्ट। सो लेंथ इज ऑल्सो गिवन 100 मीटर। आपको तीसरा चीज क्या फाइंड आउट, सॉरी सेकंड चीज क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर लॉस फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी। रेक्टेंगुलर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाज गिवन 500 mm बाय 350 mm, ए और बी मार्क करके लिया। सो वो फाइंड आउट करके लेना है इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। क्यू दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट डायमीटर इफ द क्वांटिटी इज सेम, एंड केस टू इफ द वेलोसिटी इज सेम। और सेकंड चीज आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड अ प्रेशर लॉस पर मीटर 100 मीटर लेंथ। सो लेंथ इज ऑल्सो गिवन। सो सबसे पहले देखते हैं अगर क्वांटिटी सेम है तो मुझे डायमीटर क्या मिलेगा। तो ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूला है d इज इक्वल टू 1.265। फॉर्मूला में मैंने ये शेयर किया है आपके साथ, आप चेक कर सकते हो। To find the equivalent diameter if the both quantity is same, if the velocity is same, तो वहाँ पे दो डिफरेंट फॉर्मूलाज है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप नंबर केस नंबर 1। सो केस नंबर 1 का ए क्यूब बी क्यूब मार्किंग करके लिया था हमने। सो डायमेंशन ऑलरेडी गिवन है, वो मीटर में कन्वर्ट करके लिया था, रेस टू 1/5 था। सो यू विल गेट डी दैट इज 0.4592 मीटर। जरूरी नहीं कि उसको में कन्वर्ट करना है। सेकेंड, अगर वेलोसिटी सेम है तो फॉर्मूला डी इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी। सो सेकंड केस को यूज करके भी आपको डायमीटर पता चलेगा क्योंकि ए और बी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ द एयर इन डक्ट। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ऑफ कोर्स डिस्चार्ज डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आई थिंक डिस्चार्ज इज गिवन 15 मीटर क्यूब पर मिनट, सॉरी 75 मीटर क्यूब पर मिनट। सो वो ऑलरेडी गिवन था। सो 75 डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा आपको, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट वाज ए बाय बी। सो करके आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो।
नेक्स्ट, मीन हाइड्रोलिक डेप्थ ए बी अपॉन ट्वाइस ए प्लस बी। ये क्यों किया, कैसे किया, वो चेक करने से पहले हमें देखना है कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है। मुझे फाइंड आउट करना है प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पर 100 मीटर लेंथ। और प्रेशर लॉस का फॉर्मूला है एफ एल रो वी स्क्वायर अपॉन 2m। एफ 0.01 गिवन था डेटा में, रो डेंसिटी वॉज गिवन, लेंथ 100 मीटर इट वॉज ऑल्सो गिवन, और वेलोसिटी देखना था। तो वेलोसिटी कहाँ से आएगा, तो डिस्चार्ज डिवाइड बाय एरिया, डिस्चार्ज डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया करके आपको क्या पता चलेगा, वेलोसिटी। नेक्स्ट आपको एम फाइंड आउट करना है। एम फाइंड आउट करना है तो ऑलरेडी क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बी अपॉन ट्वाइस ए प्लस बी करके आप एम फाइंड आउट करके लोगे, और फिर एम का वैल्यूज आप यहाँ पे यूज करोगे। सो आपको जो आंसर मिलेगा वो रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब जरूरी नहीं कि हर बार उसको बार में कन्वर्ट करे, बोला नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। कुछ रॉन्ग करने से बेटर है कि कुछ भी मत करो, एज इट इज छोड़ दो। सो यहाँ पे उन्होंने कुछ मीटर ऑफ वाटर में भी कन्वर्जन किया है, में भी कन्वर्जन किया, सो जरूरत नहीं इतना कुछ करने का। सिंपली आप एफ एल रो वी स्क्वायर बाय 2m कर दो, आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिलेगा। आई होप ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स आज हमने कवर किए हैं, 4 नहीं सॉरी 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल हमने किए कवर किए। सबसे पहले था बर्नौलीज इक्वेशन, सेकंड था इक्विवेलेंट डायमीटर, तीसरा था फ्रिक्शनल चार्ट आपको यूज करना है, एफ गिवन नहीं था तो चार्ट से हमने निकाला, और चौथा टाइप में बोलूंगा वो था हमने टोटल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करना है वो चेक किया। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। यहाँ पे मैंने आपके साथ फॉर्मूला शेयर किया है, वो सफिशिएंट है। वो सफिशिएंट फॉर्मूला सिर्फ लास्ट के एक रात पहले एक बार करके जाओ, 100% गारंटी देता हूँ मैं, ये चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसका थ्योरी इजी है, इसके न्यूमेरिकल्स भी इजी है। ये आराम से आपको मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम 15 मार्क्स आराम से आपको मिलेगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इफ यू एनी डाउट, इफ यू एनी क्वेरी, काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप सबके कमेंट्स के बाद मैं वहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर कंडक्ट करूँगा। सो आपके न्यूमेरिकल्स, आपके जो भी डाउट्स हैं वो ऑन द स्पॉट फेस टू फेस क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी सजेशंस देन मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय, टेक केयर।